Good morning, students. Today we will see the other common disease, typhoid. Typhoid is caused by the Salmonella typhi bacteria, and every year so many of us fall from this disease. And this disease is also communicable disease. It is spread from one place to other place. When the flies sit on the vomit, feces or urine of the sick person, then flies carries the bacteria, and they transfer bacteria from one place to other place, and that when the flies sit on the food or water, then the contaminated water, if goes in our stomach, then it harm our intestine. Okay, so it harm our intestine, and along with the intestine it harm our pancreas and gallbladder also. Okay, so here the some symptoms are given, that a person having continuous headache and fever, and after 10 to 15 days only we can recognize that the person is having what? Typhoid, or we can identify the disease. Okay, and how we prevent from this disease? The person must eat proper food and boil water, and the food must save from flies and ensure proper disposal of human feces of the sick person. Articles used by the sick person must be clean with Dettol, and other safety measure must be taken. Then vaccination, that is a TAB vaccination, is given to improve the immunity for 3 years. Then the malaria is caused because of the protozoa named Plasmodium, and the mosquito, Anopheles female mosquito, they carries these protozoa, and when the mosquito bite us, then these protozoa enter our body and we cause what? Malaria. The symptom is what? We are having chilling or shivering and fevers, headache and body ache and cramps. Fever fever with much swelling, or anemic or lack of blood. Okay, so symptoms of malaria given here: sudden chilling and shivering and high fever. Okay, how to save from malaria? Use mosquito net, then wire gazing of windows and door. Avoid water accumulation. Water should not be collect any place. Spread smoke of neem leaves. Cover water tank should be covered with the lead, and breed fishes in ponds. So the fish eat the protozoas from the pond, that is a river, and they destroy that. Then the next is, okay, see if the person is having any disease, then with the WHO, World Health Organization, help malaria eradication program is held, in which each all sick person blood is tested, and on being infected he is given 600 mg क्लोरोक्विनिन टैबलेट. अगर किसी पर्सन को मलेरिया है तो उसको क्लोरोक्विनिन टैबलेट दिया जाता है, ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे, एंड आफ्टरवर्ड 15 mg टैबलेट इज टू बी taken every day for 4 days. Medicine must be taken under doctor's direction. Then now the next disease is dysentery. Dysentery, that in dysentery sudden cramps and pain. In dysentery, sudden cramps and pain in the stomach, and this disease is common in summer and rainy season when we eat or drink contaminated food or water, then we cause this disease. Okay, this disease is caused by microorganism protozoa Entamoeba histolytica. This is a parasite of humans large intestine, which uses the living cell and tissues as its food. मतलब ये जो disease है dysentery, ये क्यों होता है? Because of protozoa
नाम क्या है इसका? एंटामोइबा हिस्टोलिटिका। ये प्रोटोजोआ एक पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब क्या होता है? जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है? ईट करता है या उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो ये जो पैरासाइट है ये ह्यूमन बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, वहाँ के लिविंग सेल्स और टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और क्या करता है? उसको टॉक्सिक और हार्मफुल मटेरियल्स को प्रोड्यूस करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, विच डिस्ट्रॉय, उससे हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दे एंटर द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन एंड फॉर्म इनक्योरेबल यूलर्स ड्यू टू विच डिसेंट्री और amoebiasis disease occurs as cholera flies transmit this disease also। यहाँ पे इसके सिम्टम्स दिए हुए हैं। ये सिम्टम्स आप एक बार देख लीजिएगा क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके। प्रिवेंशन क्या है इसका, कैसे रोक सकते हैं? ड्रिंक बॉइल वाटर, क्लीन यूटेंसिल्स, प्रॉपर यूज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वॉश हैंड्स बिफोर कुकिंग एंड मील, वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, ठीक है। ये प्रिवेंशंस अगर हम लें तो इस डिसीज़ से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। Then diarrhea. In this disease, a person passes watery and semi-watery stool more than 3 times। मतलब डायरिया में क्या होता है? आपको लूज मोशंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। The disease is caused by the Escherichia coli, Salmonella और Entamoeba histolytica। This caused by contaminated food and water causing damage to the इंटेस्टाइन। ये भी हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इसके सिम्टम्स देखो, यहाँ पे सिम्टम्स दिए हैं। स्पैम्स एंड क्रैम्प्स इन द एब्डोमेन एंड फ्रिक्वेंट वाटरी स्टूल, वोमिटिंग, ड्राई माउथ, थर्स्ट एंड इरिटेबिलिटी, सडन वेट लॉस, स्लो पल्स रेट, डीप ब्रीथिंग, सनकेन आईज, सनकेन नोज, ड्राई टंग एंड ड्राई इनर चिक्स, ठीक। प्रिवेंशन इसके लिए क्या है? इसमें आप क्या कोकोनट वाटर है, सॉल्टी बटर मिल्क है, लेमन जूस है, राइस स्टार्च वाटर, ये सब इसमें आप ले सकते हैं, प्लस ORS सोल्यूशन भी ले सकते हैं, ठीक है। फाइलेरिया ये जो होता है, इसमें क्या होता है? आपके जो पैर हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं ना, और ये जो डिसीज़ है ये स्प्रेड होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो बाइट से, ठीक है। सो यू मस्ट हैव परहैप्स सीन सम पर्सन्स विथ 1 leg और इवन बोथ द लेग्स फैक्टर, मतलब दोनों पैर क्या होते हैं? फूल जाते हैं, है ना। सो हैव यू एवर थॉट हाउ इट हैज़ गॉट swollen so? एंड दिस इज़ बिकॉज वॉर्म इन्फेक्टेड डिसीज़ फाइलेरिया। फाइलेरिया जो होता है वो वॉर्म से होता है। किससे होता है? वॉर्म, ठीक है। इसके पहले हमने देखा कि वो जो हमने देखा कि मलेरिया है और डायरिया है वो प्रोटोजोआ से हो रहा था, लेकिन फाइलेरिया किससे होता है? वॉर्म, है ना। और इसका वॉर्म का नाम वॉर्म से होता है। इस वॉर्म को कैरी कौन करता है? क्यूलेक्स मॉस्किटोस, ठीक है। तो जब ये क्यूलेक्स मॉस्किटोस बाइट करते हैं तो ये जो वॉर्म्स है वो हमारी बॉडी में एंटर होता है और हमें ये डिसीज़ हो जाती हैं। इस डिसीज़ में सिम्टम्स क्या हैं इसके? द सिक पर्सन हैज़ फीवर एंड ईचिंग, लीवर, पेंक्रियास, लेग्स गेट swollen एंड फॉर्म ग्लैंडुलर स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा पैर सूज जाते हैं। प्रिवेंशन के लिए मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए। और DEC, ये DEC एक ड्रग है, इसका मतलब मेडिसिन है जिसको यूज़ करते हैं इसके लिए। चिल्ड्रन बिलो 2 years ऑफ एज, इनको ये मतलब DEC डिक्थिलिल कार्बोमेजिन ड्रग मस्ट बी टेकन बट द फॉलोइंग शुड अवॉइड टेकिंग इट दोज, मतलब 2 साल के बच्चों के जो है मेडिसिन वो नहीं दी जाती, प्रेग्नेंट वुमेंस को नहीं दिया जाता, पर्सन हु आर सीरियसली इल एंड पर्सन हु आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल उनको ये मेडिसिन नहीं दिए जाते। कोल्ड एंड फीवर हम सबको पता है, कोल्ड एंड फीवर है ना, इसमें स्नीजिंग होती है, नोज़ सूज जाते हैं हमारे, ठीक है, कफ होता है। सो दिस कॉज बाय द वायरस। कोल्ड एंड फीवर किसके कारण होता है? वायरस, एंड कैन हैपन टू वन एंड ऑल, ठीक है। कोल्ड इज कॉज बाय वायरस नेम रिनो वायरस। यहाँ पे ध्यान दो, कोल्ड किसके कारण होता है? वायरस, उसका नाम क्या है? रिनो वायरस, है ना। इट इज़ अ कॉमन डिसीज। इन दिस डिसीज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक मेम्ब्रेन, मेनली नोज एंड थ्रोट, इज इन्फेक्टेड by the virus. Sometime due to other viral attack there may be body pain and fever. This fever is also known as flu. The diseased person spit or spit droplets
formed due to sneezing and coughing can infect a healthy person. Articles used by the sick person as handkerchief, towel, etc. can also be spread this disease, है ना। तो जिसको भी सर्दी खांसी बुखार है उसके हैंकरचीफ से या जो उसने भी टच किया है उसको आर्टिकल्स को हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके सिम्टम्स सबको पता होंगे। फ्रिक्वेंटली स्नीजिंग है, वाटरी नोज़ है, स्वेलन एंड ईचिंग नोज़ एंड नोज़ ब्लॉक्ड, है ना। इसके प्रिवेंशन के लिए अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन एंड डू नॉट यूज़ हैंकरचीफ, टॉवल, क्लॉथ एक्सेट्रा। The article of the sick person as handkerchief, towel and cloth must be cleaned in Dettol and dried in sun, ठीक। चिकन पॉक्स मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है।